Hello, good morning, students. This is KK Bhatt here. Today I am here once again with the chapter 4 of English, class 10, first flight. From the diary of Annie Frank, written by Annie Frank. Dear students, before this video, I have explained the summary of the lesson as well as some paragraph of this lesson. This is part 3. In this particular video, I am going to explain what has been written by Annie Frank in a diary. So, dear students, here see page number 52, Dearest Kitty, Saturday 20 June 1942. Look here, in her diary, Annie Frank just described Kitty as an intimate friend. So she addressed here Dearest Kitty. So she addressed here as Dearest Kitty. Why she write Dearest Kitty? Because she admit Kitty as her real friend, her intimate friend. That is why she explained here and address Kitty as Dearest Kitty. You can see here what is the format of the diary. SMS you can follow the format when you are going to write the diary. See here the first line. Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next farm and who will be kept back. Half the class is making bet. Jean and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Jean and Jax, who have staked their entire holidays saving on their bets. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even J.S. pleading, glance at my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. See here the explanation of this paragraph. Our entire class is quaking in boots. Quaking in boots. That is a phrasal word. Shaking with fear and nervousness. मतलब you can look here that she said that whole class just being nervous because of fear of failure. जैसे असफलता के डर से बच्चे क्या होते हैं बिल्कुल एकदम डरे हुए होते हैं. तो यही कंडीशन है कि सारे क्लास के जो बच्चे हैं बिल्कुल एक डर से काँप रहे हैं, डर से भयभीत हैं. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next part. अब इस रीज़न क्या था बता रहे हैं कि द रीज़न कारण है निश्चित रूप से द फोर्थ कमिंग मीटिंग जो आने वाला मीटिंग है. जैसे हमारे यहाँ पीटीएम होता है तो आपको बताया जाता है कि भैया आपका इस दिन रिज़ल्ट निकलेगा, उस दिन पीटीएम भी होता है और इस तरह से जो है वो चीज़ें मेंटेन होती है. ठीक इसी तरह से जो पीटीएम है, पीटीएम का प्रोसेस हो रहा है, जो फोर्थ कमिंग मीटिंग है जिसको आप विद द टीचर डिसाइड, जिसमें टीचर डिसाइड करते हैं हु विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अगली कक्षा में जाएंगे एंड हु विल बी केप्ट बैक
और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछली कक्षा में रुकना पड़ेगा। हु विल बी किड बैक, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पिछली कक्षा में रुकना पड़ेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, बेट्स मीन्स होता है शर्त लगाना, तो हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, लगभग आधा जो क्लास है वो बिल्कुल एक बेट एक शर्त लगा रहे हैं, एक दूसरे से वो शर्त लगा रहे हैं। Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Jian और मैं, ये Jian कौन है? That is the friend of Annie Frank. Laugh ourselves silly, silly means होता है foolishness, मतलब both are laughing foolishly at the two boys behind us. दो बच्चे जो उसके पीछे बैठे हुए हैं उन दोनों बच्चों को देख करके सीएन और आई दोनों लाफ करते हैं। सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टैक्ड, सीएन और जैक्स ये दो ऐसे बच्चे हैं हु हैव स्टैक्ड जो दांव पे लगाए हुए हैं देयर इंटायर हॉलीडे, जो अपना पूरी छुट्टी जो गर्मी का समर हॉलीडेज होता है उस पूरी छुट्टी को उन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। हु हैव स्टेक देयर सेविंग ऑन देयर बेड्स, और अपने शर्त को बचाने के लिए फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक वो यही बात कहते हैं, इट्स यू आर गोइंग टू पास, अरे यार तुम पास हो रहे हो। वो दूसरा कहता है नो आई एम नॉट, दूसरा कहता नहीं यार मैं नहीं पास होऊंगा। यस यू आर, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, फिर अगला कहता नो ही वॉज नॉट पास, वो पास नहीं होगा। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लैंस, प्लीडिंग ग्लैंस मतलब जैसे चेहरे पे आपके बिल्कुल एक प्रार्थना का भाव हो, ठीक है। प्लीडिंग एक प्रार्थना, एक सिफारिश जिसको आप बोलते हो, सिफारिश बोलते हो, रिक्वेस्ट बोलते हो। तो षष्ठ जीएस जो है, इवन जी, जबकि जीएस के चेहरे पे एक बिल्कुल एक सिफारिश का भाव था। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट मीन्स क्या होता है? एक्सप्लोशन मीन्स विस्फोट। तो वो कह रहा है कि माई एंग्री आउटब्रस्ट, मेरा जो क्रोधित विस्फोट था, कैन नॉट काम देम डाउन, ये जो है उन बच्चों को शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमेज, वो कहती है शी सेड एनी फ्रैंक सेड दैट इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछोगे हमारे क्लास के बारे में तो देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज मीन्स डल हेडेड कह सकते हो, मूर्ख आदमी या डम स्टूडेंट्स। तो कहती है देयर आर सो मैनी डमीज, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मंद बुद्धि के हैं, डल माइंड के हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास, लगभग 25% स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड बी केट बैक, लगभग 25% बच्चों को बैक रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मीन्स अप्रत्याशित कह सकते हो, जिसके बारे में आप भविष्य में, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये टीचर किसके साथ क्या करेंगे। इसलिए वो कह रही है द टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, टीचर वास्तव में अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं इस धरती के, बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट देने वाले इस धरती के प्राणी हैं। आई होप इट इज़ क्लियर द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सी हियर द सेकेंड पैराग्राफ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड आई एंड माई सेल्फ, we will make it. The only subject I am not sure about is math. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. Now see the explanation of this particular paragraph. कह रहा है I am not so worried. अब एनी फ्रैंक ये कह रही है कि she was not worried अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, यानी जो उसकी फ्रेंड है, जो लड़कियां उसकी फ्रेंड है, उन लड़कियों के रिज़ल्ट के बारे में वो ज़्यादा चिंतित नहीं है। एंड माई सेल्फ, और स्वयं के बारे में भी वो ज़्यादा चिंतित नहीं है। यू विल मेक इट, उसे लगता है कि हम लोग तो
वी विल गेट पासिंग मार्क, हम लोग तो पासिंग मार्क पा ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक सब्जेक्ट है जिसमें वो श्योर नहीं है। शी वॉज नॉट श्योर ओनली ऑन ए सब्जेक्ट दैट इज़ मैथ। वो कौन सब्जेक्ट? दैट इज़ द मैथ। अबाउट ए मैथ, है ना, मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो श्योर नहीं है। ऑल वी कैन डू इट वेट, तो क्या आगे वो कहती कि भाई देखिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार के। तो कहती है कि हम आपस में डिस्कस करने से बढ़िया है, या इस तरह की बात परेशान होने से बढ़िया है कि वी आर वेटिंग फॉर रिज़ल्ट। हम बेहतर है कि वी विल वेट फॉर रिज़ल्ट, हम लोग इंतज़ार करें किसका? रिज़ल्ट का। Until then we keep telling each other not to lose heart। तब तक करी until then she says that maintain your patience, keep your patience। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, टीचर जब तक रिज़ल्ट की घोषणा नहीं कर सकते, तब तक हमने बच्चों से बस यही कहते रहे कि अपना पेशेंस बनाए रखो, अपना पेशेंस मत खो, ठीक है, क्योंकि हम पेशेंस खो के क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। टीचर जिसको पास करना है उसको पास कर चुके हैं, जिसको फेल करना है उसको फेल कर चुके हैं। तो इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द रिज़ल्ट, इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द रिज़ल्ट। तो ये वो कहती है इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द रिज़ल्ट, बेटर है कि हम लोग किसका इंतज़ार करें? रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई गेट along pretty well with all my teachers। There are 9 of them, 7 men and 2 women। Mrs. Kissing, the old fogey who teaches math, was enamored with me for ages because I talked so much। After several warning, he assigned me extra homework and essay on the subject. The subject is a chatterbox, a chatterbox. What can you write? She said, what can you write about that? I would worry about the latter. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। This is the third paragraph। अब देखो इसमें क्या बताती है। वो कहती है कि I get along pretty well। अब get along pretty well मतलब होता है good relation with all, good relation with all my teachers। वो कहती है कि मेरा लगभग सभी टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था, यानी एवरी टीचर्स लाइक्ड हर मच, सारे टीचर उसको पसंद करते थे। इसलिए वो कहती है कि आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर। शी हैड अ गुड रिलेशन विथ ऑल द टीचर, मतलब सारे टीचर के साथ उसके अच्छे संबंध थे। Just underline this word। There are 9 of them, 7 men and 2 women। अब देखो यहाँ ये जो लाइन है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा था हाउ मेनी टीचर्स वर इन द स्कूल, योर आंसर इज 9 टीचर। देयर आपको ऑप्शन मिलेगा 9 टीचर, ठीक है, 7 men and 2 women, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको पता रहेगा कि कितने टीचर थे, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे, तो जब कभी भी लेसन को आप खोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स एंड शी हैड ए गुड रिलेशन विथ ऑल द टीचर। देयर आर 9 ऑफ देम। हाउ मेनी टीचर्स? देयर आर 9 ऑफ देम। 7 men, there are 7 teachers। They belong to the man category and 2 women। Mr. Kissing, the old fogey। अब फोगी का मतलब क्या होता है? ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन का मतलब ऐसे व्यक्ति जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं उनको बोलते हैं फोगी। जैसे आपके यहाँ कोई टीचर है, अगर धोती कुर्ता पहन के आ जाए और आपको पढ़ाए
तो आप क्या कहोगे? फोगी कहोगे, बिकॉज ही इज़ द ओल्ड फैशन मैन, बिकॉज ही इज़ द ओल्ड फैशन मैन। तो फोगी का मतलब यही होता है द पर्सन हु अडॉप्ट द ओल्ड थिंग्स। तो वही वो कह रहा है कि मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ। तो मिस्टर फोगी जो ओल्ड फैशन पर्सन थे, जो पुराने ख्यालात के पर्सन थे, हु टीचेस मैथ, वो हमें मैथ पढ़ाते थे, वॉज एनायड विथ हर फॉर एजेस। वो कह रही वॉज एनायड, वो हमसे नाराज़ था, जैसे लगता था कि वो मुझसे युगों से नाराज़ हो। वॉज एनायड विथ मी फॉर एजेस, ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे युगों से नाराज़ हो। बिकॉज आई टॉक सो मच, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा बात करते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत बार उन्होंने मुझे वार्निंग दिया, मतलब ही वार्नड हर मैनी टाइम, ही वार्नड हर मैनी टाइम। ही असाइंड में एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्हें मुझे एज ए पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड इसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी लड़की पे टॉपिक पे उन्होंने एज ए पनिशमेंट उसको इससे राइटिंग करने के लिए दिया। तो कह रही व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। फिर ये क्वेश्चन ये है कि इस तरह के फालतू टॉपिक पे हम क्या लिखेंगे भाई। चैटर बॉक्स, बातूनी लड़की, कौन सा हिस्से का टॉपिक है भाई, इस पर वो क्या लिखेंगे। शी बिकेम नर्वस टू थिंक व्हाट शी राइट अबाउट दिस, वो क्या लिखेंगे। एंड व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर। पहले तो उसने उस टॉपिक को एडमिट कर लिया, लेकिन बाद में जब सोचने लगी कि भाई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इस टॉपिक पे वो क्या लिखा है, तो शी स्टार्टेड वरीड अबाउट दैट। उस टॉपिक को लेकर के वो थोड़ा चिंतित होने लगी। आई डिसाइडेड, फाइनली उसने निर्णय लिया। क्या लिया? आई जॉल्टेड डाउन और सेट डाउन, मतलब राइट इन संक्षिप्त। सेट डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना। तो आई जॉल्टेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। कह रही कि मैं उस टाइटल को, चैटर बॉक्स टाइटल को अपने नोटबुक में लिखूँगी, लेकिन शार्ट में लिखूँगी। आई डिसाइडेड, आई जॉल्टेड डाउन द टाइटल इन माई बुक, टॉक्ड इट इन माई बैग। और फिर ये सोचते हुए उसने उस टॉपिक को अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करने लगे। That evening, after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big space between the words. But the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student trait and that I would do my best to keep it under control. Look here, finally she ready to write the topic. Carry that evening was Sam, after I would finish the rest of the work, when she had completed her homework. जब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट दिस से caught my eye, तो अचानक उसकी आँख उस नोट पे पड़ी। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो कह रही है कि मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब उस सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी तो वो फाउंटेन पेन की जो नीब होती है उसको वो चबा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, एनी वन कुड टॉक और टू राइट एम्बलेसली, कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो बिल्कुल केयरलेसली, राइट केयरलेसली, ठीक है, बहुत ही असावधानी से लिखेगा। ऑन द लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, और उसने क्या सोचा
कि शब्दों के बीच में उसने बड़े बड़े गैप करना शुरू कर दिया। बट द ट्रिक वॉज टू कम विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट। लेकिन जो ट्रिक है, योजना उसके दिमाग में आती रही कि टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बेटर है कि मैं ये प्रूव कर दूं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, आइडिया, उस आइडिया का महत्व क्या है। आई रोड द 3 पेजेस, उसने 3 पेजेस लिखे। एंड मिसेस किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मिस्टर किसिंग जो था, उन्होंने शाबाशी दिया, असाइन किया और सेटिस्फाइड हुए। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंटेड, मैंने आर्गूमेंट किया था कि जो टॉकिंग है वास्तव में एक स्टूडेंट की स्पेशल क्वालिटी है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वो इसको बिल्कुल अपने अंडर कंट्रोल से करना चाहती है। ठीक है, उसको वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल करना चाहती है। बट दैट वुड आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ एंड हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। वो कहती है कि भी देखो, मैं अपने इस आदत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए कि मेरी माँ भी बहुत बातूनी है, एज इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, इसको आप मेरी मदर की विरासत मान सकते हो, एक पेरेंटियल जो हेरिटेज होते हैं, विरासत होते हैं, उस क्वालिटी को आप मान सकते हो। दैट इज़ इनफ। Thanks to watch my video. I hope you will like this video and subscribe and share in your group. Thanks to once again to watch my video.